Hello everyone and welcome to the channel. So guys, this is the first session for your for this free series for UPSC CSAT preparation for the year 2024. And in this session, we would be looking at introduction to your reading comprehension part, which is by far, you can say it is one of the strongest pillars of your CSAT exam. Although CSAT is a qualifying exam, but still you have to do it. So before we go any further, guys, if you're preparing for CSAT, I would like to let you know about the comprehensive guidebook for your CSAT preparation. You can download this book from the description of the video. The link for this book has been given in the description of this video. So just scroll down and you can download this book for this book for free. Now this book has everything in detail that you need to you need to start preparing for your exam. It has everything related to your syllabus, ranging from your important topics, what sort of questions you may face in the exam. So you can go download it and you can target your 70 plus score in this very easily. So this book is going to be, and it's an ebook by the way. So you can just save it on your computer or on your mobile phones and you can use it whenever, wherever you want. So it includes all the important topics, syllabus that you need to cover, the key concepts that you need to work upon, and what should be your strategy for the exam. Right. So go download it. It will definitely benefit you. So let's move further, guys. Now the CSAT exam. The CSAT exam, the syllabus for this exam, it basically ranges between these six topics, or you can call them six subjects, but majority of the questions are mostly from quantitative aptitude, reading comprehension, and your reasoning ability. So these are the key components of this exam, CSAT exam. Now, obviously, if you've started preparing for this exam, you would know that this paper is a qualifying. This paper is of qualifying nature. तो आपको इसमें सिर्फ 33% मार्क्स लेने होते हैं गाइस. तो लेट मी गिव यू द ब्रीफ, अगर जिस किसी को नहीं भी पता है. ये पूरा पेपर 200 मार्क्स का रहता है गाइस. अब 200 मार्क्स की डिवीजन कैसे रहती है? देयर आर 80 क्वेश्चंस, so every question is for 2.5 marks, right? So that makes it 200 marks, and there will be negative marking, right? So please remember, 1/3 is the negative marking for this. So if you mark your answer wrong, there will be deduction in your score. So there is negative marks for every wrong answer, and the cutoff, I mean, the minimum that you have to score out of these 200 marks is 33%, right? So 33% of 200 marks comes down to 66 or 67. So 67 is the score that you have to target out of 200 marks. Now to get to these 67, now if I say you just have to, you just have to target 28 questions bare minimum out of these 80 questions. So 28 questions out of 80 you have to get correct to crack the CSAT exam, and we will in these sessions help you with your preparation, with your strategy, and what should be your target areas. But still, this is the official syllabus that is conveyed by UPSC. So reading comprehension, interpersonal skills including communication skills, sometimes questions are there. Decision making and problem solving questions are seen in some of the years. General mental ability questions are also sometimes put to test your aptitude skills. But still, let me show you the actual bifurcation of the questions for the last 6-7 years, right? So let's start from the year 2017. The gray bar that shows you English. Now starting from 2017, the number of question in 2017 for English were 30 out of 80. Now in 2018 it was 26. In 2019, it was again 30 questions. In 2020, there were 25 questions. In 2021, there were 27 questions. In 2022, there were 27 questions again. And last year, during 2023, there were 26 questions out of 80 on the basis of English. Now, you can also look at quants. The number of questions for quants has also increased over the years. So, for example, in 2017, it was 26, then it went up to 30, 29, then suddenly it went up to 41. Now, how did it increase? There were no decision making or general mental ability questions in this year. So from 2020, what we have observed, there are basically three subjects or three topics that they broadly cover. That is quants,
That is the biggest section. Second is your English, and then there are, ranging between 10 to 12 questions based on reasoning ability. So that is your broad breakup of your questions, right? Then in the 2021, again, the questions based on quants were around 36, 37, then 36, and then again 42 questions in the year 2023. So in English, let's talk about English. So we can comfortably say there would definitely be 25 to 30 questions based on English, right? So looking at, a generic number, guys, if you mark all the questions right, you can get the desired result from either quants or English. But that is not a sound strategy, honestly speaking. Many students last year I met and I spoke with, they told me that, sir, we only prepared for quants and reasoning, we didn't prepare for English at all. We just based our preparation on quantitative aptitude, and the paper was so difficult that we were not able to make it to we were not able to crack the minimum cutoff. So that should not happen. You should not base all your strategies on one subject. It should be a mix of all the three, right? So we'll discuss that as we go along in the series. We'll discuss more, we'll break it down, and you'll understand what your strategy should be for reading comprehension part. But yes, definitely what I can tell you is, please do not base your strategy only on basis of one or two subjects. It should be an amalgamation of all the three. Some marks should be taken from quants, some should be taken from reasoning, and some from English, and that is how you'll be able to comfortably crack this exam and get to your desired phase. So what are the tips and tricks for reading comprehension, guys? Now, first of all, before we start preparation, guys, please start with your SWOT analysis. That is what I always tell my students, my aspirants, that always understand your strengths, your weaknesses, what is the opportunity and what is the threat in front of you. So identify your weakest area, and guys, we have one good year in front of us, so this is the right time you started preparing for it. So for identifying your weakest subject, you can solve previous year papers. So this is what you need to do, is try solving a couple of previous year papers of UPSC exams. Now this will not only help you to practice, but also it will tell you your strong and weak areas. Now guys, let's say I'll give you an example. I'm good at quants, right? I did my engineering, I feel comfortable with quants and reasoning, and I don't feel that I should spend so much time on comprehension. But again, I told you this is going to backfire. Definitely this is going to backfire, because you cannot get 40 or 45 out of 45 in quantitative aptitude, or 35 out of 45. That is not possible, right? Even if you are a genius, the time will not allow you, because the questions are lengthy, they need to be solved, and obviously there is negative marking. So I'll tell you something of importance, but let's understand. First, start with your SWOT analysis. I must know that if I'm good at quants, I need to work on English. If I'm good in English, I should be working on my quantitative aptitude. So this will help you to pick out those particular subjects, those topics that you need to work upon, and that is the first thing that you need to do. Start with the SWOT analysis. Take a few previous year questions so that you get to understand what should be your strategy. Then time management. While attempting the practice papers, it is necessary that you take into consideration the time that you spend in solving each question. One should practice more to reduce the average time spent on a solving question. With practice, we will work on time management, but before that, we will need to build up our concepts. Now, identify your strong subjects. That is also very important. Now, it is recommended that once a candidate knows his strong subjects, he should one should solve questions from that sections first in the paper. So once you know which is your strong subject, which is your strong part, you should always solve the questions on those that's on that subject, on those topics first. For example, if I'm good at let's say quantitative aptitude, I will be first solving questions on quants, then I'll be moving to reasoning, and then I'll be looking at comprehension. And if I'm good at English, it will be the other way around, right? So this will not only help you feel confident about your preparation, but it will also assess the performance and not panic if they're stuck on a tricky question. So that is true. जैसे इस साल हुआ 2023 में, राइट? बच्चों पेपर देने गए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के दम पे, लेकिन वहां पे क्वेश्चन बहुत मुश्किल आ गए, तो दे शुड हैव बीन एबल टू अडेप्ट। उसी बेसिस पे, उसी टाइम पे आपको क्या समझ आना चाहिए था कि अगर यार इतने मैथ्स के क्वेश्चन टफ हैं, तो आई थिंक हमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कर लेना चाहिए। दैट वुड बी अ ग्रेट ग्रेट सोर्स फॉर इट, राइट? आई मीन वी दैट कैन टेक अस टू एटलीस्ट द कट ऑफ स्कोर। बट अगर वो प्रिपेयर नहीं किया पहले से, देन इट वुड बी अ प्रॉब्लम, right? So identify your strong subjects,
identify your weak subjects, start working in this direction. Now what you need to do for reading comprehension, so please understand this guys, as I told you, लगभग 25 से 30 के बीच में क्वेश्चंस रहते हैं हर साल आपके यूपीएससी सीसैट एग्जाम में आउट ऑफ 80. नाउ so what should be a strategy for reading comprehension? Now paper 2, that is your CSAT paper, it contains about 8 to 12 passages, and each, there can be more, there can be 13 14 depending on the year, right, but roughly they range between 8 to 12 passages. तो 12-13 passages होते हैं और उन पे कम से कम आपके 25 से 30 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते हैं. So and each passage contains maybe one or ranging between 2 to 5 क्वेश्चन. सो हो सकता है जैसे लेवल 1 पैसेजेस आएंगे उसमें एक क्वेश्चन हो, लेवल 2 है उसमें 2 या 3 क्वेश्चन हो, और कुछ लेवल 3 पैसेज इसमें 4 या 5 क्वेश्चन भी होते हैं. तो अलग अलग लेवल के क्वेश्चन होते हैं. नाउ यू शुड अटेम्प्ट दोज पैसेजेस फर्स्ट विच हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस. क्यों? टाइम लगेगा एक बार पढ़ने में, लेकिन आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, राइट. ऑन द अदर हैंड अगर आप लेवल 1 एक क्वेश्चन कर रहे हो एक पैसेज पे पढ़ के, बेशक वो छोटा होगा लेकिन आपको टाइम उतना ही ज्यादा लगेगा. सो ऑलवेज target passages which have more questions in them. Why? Because each comprehension, please read this carefully guys, because each comprehension you solve will complete approximately 8% of your paper, right? So in CSAT the examiners do not write the passages on their own, they simply copy it from a newspaper column, article or an editorial, right, and they only frame the questions by themselves. So ये चीज समझनी है गाइस कि जो पेपर बनाते हैं यूपीएससी वाले वो खुद से नहीं लिखते पैसेजेस, वो किसी एडिटोरियल, आर्टिकल या कोई भी न्यूज़पेपर कॉलम से वो एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ उठाते हैं और क्वेश्चंस खुद बनाते हैं उनके ऊपर, विच आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वाइट ट्रिकी, राइट. सो उस बेसिस पे अगर आप करना सीखोगे कि अगर मैंने एक कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करके 8% मैंने अपना पेपर कर लिया है, सो आई थिंक 2 3 4 पैसेज करके आई थिंक आई कैन गो अप टू 24 25 28% मार्क्स. नाउ व्हाट कुड बी सम यूजफुल स्टेप्स टू क्रैक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? नाउ रीड द पैसेज वेरी फास्ट, जस्ट स्किम थ्रू इट विद इन अ मिनट. पहली रीडिंग आपको ऐसे देनी है, बिना कुछ पढ़े आपको पैसेज पढ़ना है जिसमें आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आए, पैसेज की अंडरलाइंग थीम समझ आए और वो क्या कह रहा है पैसेज में वो समझ आए. देन यू स्लो इट डाउन. Then what you do is then read the questions with their options. कि क्वेश्चन को फिर पढ़ो, क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, इन्फ्रेंस मांग रहा है आपसे, वो क्या मांग रहा है, वो क्या कह रहा है कि व्हाट कुड बी अ रेलेवेंट इन्फ्रेंस और व्हाट कुड बी अ क्रिटिकल इन्फ्रेंस और व्हाट कुड बी अ कोरोलरी, राइट. या अगर वो आपसे कोई अजम्पशन दिया है उसने कि क्या अजम्पशन लिया जा सकता है वो पूछ रहा है, या फिर कोई कंक्लूजन पूछ रहा है कि इसका कंक्लूजन या क्रक्स क्या निकल सकता है, या फिर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, या क्रिटिकल मैसेज दिया है. तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन देन यू नीड टू टेक द राइट अप्रोच कि क्या उसने पूछा है क्वेश्चन में और ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है. देन गो टू द रेलेवेंट सेक्शन ऑफ द पैसेज जहां पे आपका जो इंफॉर्मेशन गिवन है पैसेज में, एंड देन यू रिकन्फर्म द आंसर एंड ऑलवेज मार्क द आंसर बाय यूजिंग द एलिमिनेटिंग मेथड. ये हम अभी डिस्कस करेंगे आगे वाले सेशंस में कि व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड, कि एक्सट्रीम ऑप्शंस को हमेशा एलिमिनेट किया जाता है, ठीक है, कॉन्टेक्चुअल ऑप्शंस को देखना होता है, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू चूज द राइट option. ठीक है. Now eliminate those options which are least likely to be correct and complete all the questions of one passage in one go. बीच में छोड़ना नहीं है, एक बारी में जितने क्वेश्चन कर पाओ एक बारी में ही करने हैं, दोबारा पढ़ने का टाइम नहीं होगा आपके पास, राइट. सो दिस शुड बी द बेसिक अंडरस्टैंडिंग. इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ ओवरव्यू के कैसा हमें करना है और कैसे करना है टारगेट इन क्वेश्चंस को. टाइम डिवीजन क्या होना चाहिए, अब दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. नाउ दिस पार्ट कंटेन्स 80 क्वेश्चन, सो वी विल try to attempt 44 questions in the first hour. पहले घंटे में हमारी कोशिश क्या होगी, हम 44 क्वेश्चन जो गारंटी से, जो हमें कंफर्म पता है कि हमारे 100% ठीक है, वो हम अटेम्प्ट करेंगे पहले घंटे में. एंड देन नेक्स्ट 40 मिनट्स वी विल जंप टू द डिसीजन मेकिंग सेक्शन एंड द अदर सेक्शंस. तो पहला एक घंटे में हमें अपने 45 to 50 क्वेश्चन करने हैं और फिर हमें डिसीजन मेकिंग या दूसरे सेक्शंस पे जाना है. तो ये हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके एग्जाम की. टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन को कैसे करना है, कौन से कॉम्प्रिहेंशन चूज करने हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है हमेशा, एंड देन यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर विद योर स्कोर, विद योर टारगेटेड क्वेश्चंस, विद योर अटेम्प्ट, विद योर अप्रोच. ये याद रखना है आपको, ठीक है. नाउ
लेट मी शो यू कि कैसे पैसेजेस आते हैं। ये एक प्रीवियस ईयर का पैसेज है, तो आई वांटेड टू डिस्कस दिस विद यू कि एक बार पता तो लगे कि कैसे पैसेजेस दिखते हैं वहां पर। सो लेट मी रीड आउट द पैसेज एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, मैंने कैसे बताया, एक बार फटाफट से पढ़ो। एज वी लुक टू 2050 वी विल नीड टू फीड 2 बिलियन मोर पीपल। द क्वेश्चन ऑफ विच डाइट इज बेस्ट हैज टेकन ऑन न्यू अर्जेंसी। द फूड्स वी चूज टू ईट इन द कमिंग decades will have dramatic ramifications for the planet. Simply put, a diet that revolves around meat and dairy, a way of eating that is on the rise throughout the developing world, will take a greater toll on the world's resources than one that revolves around unrefined grains, nuts, fruits and vegetables. तो खाने के फूड सिक्योरिटी की बात कर रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाना भी चाहिए, और जो मीट वीट वाली जो डाइट है ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है नेचर का, मतलब क्लाइमेट के लिए या धरती के लिए। तो उससे बेटर क्या है कि हमें अनरिफाइंड ग्रेन्स, नट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वाली डाइट पे को हमें प्रेफर करना चाहिए। तो अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, देखना कैसे, अब सॉल्व करके दिखाता हूं आपको कैसे सॉल्व किए जाते हैं। व्हाट इज द क्रिटिकल मैसेज। तो हमें कंक्लूजन मैसेज ढूंढना है कि क्या कहना चाह रहा है इस पैसेज में ऑथर, राइट। सो लेट्स रीड द ऑप्शंस। Our increasing demand for foods, अब एलिमिनेशन मेथड समझाऊंगा कैसे होता है। Our increasing demand for foods sourced from animals puts a great burden on our natural resources. True. Diets based on grains, nuts, fruits and vegetables are best suited for health in developing countries. Okay. Human beings change their food habits from time to time irrespective of their health concerns. कि ह्यूमन बींग्स अपनी फूड हैबिट्स चेंज करते रहते हैं। क्या ऐसे कोई जिक्र हुआ है पैसेज में? जो पैसेज में मेंशन नहीं है गाइज, हमें उसको नहीं अज्यूम करना होता या नहीं हमें उसको ऐड करना होता अपने पोटेंशियल ऑप्शंस में। याद रखना, जो पैसेज में गिवन है उसी बेसिस पे आपको आंसर करना है। इट मे बी रेलिवेंटली ट्रू in the real world, but according to the passage it was not mentioned, so it cannot be in the answer, right? Then option number D, from a global perspective we still do not know which type of diet is best for us. कि वो तो उसने बोला है कि यार बेस्ट डाइट कौन सी है, तो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी है टू व्हाट इज गिवन इन द स्टेटमेंट कि दिस right. So a diet that revolves around meat is on the rise throughout the developing world, which will take a greater toll on the world's resources than one that revolves around refined gas. So the food we choose to eat will decide have a dramatic. So हाँ ये देखो फर्स्ट लाइन में, the question of which diet is best has taken on new urgency. लेकिन we still do not know which type of diet is best for us. Right? नहीं, वो क्या, वो तो बता रहा है कि हम नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा खा रहे हैं और इसी से ज़्यादा परेशानी हो रही है। हमें वेजिटेरियन फूड, नट्स, ग्राउंड नट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये खाने चाहिए। लेकिन ये तो बिल्कुल ही उसने आउट ऑफ द बॉक्स बात कर दी। तो इस तरह से आप दो ऑप्शंस जो कंटेक्चुअली रॉन्ग है उनको एलिमिनेट कर सकते हो। अब बचा अपने पास ए या बी। अब यहाँ पे हमेशा यही होता है, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, आखिरी में दो बचते हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। यही सोच रहे हो ना अभी? एग्जैक्टली। अब इनमें से भी देखना एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, ये आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमेशा याद रखना, जो एक्सट्रीम ऑप्शंस होते हैं ना, जैसे ऑलवेज, नेवर, बेस्ट, ओनली, ठीक है, दिस इज यू नो this is the only one, yeah, this is specific particularly one, this can only be done by this, so only, always, never, ये जो एक्सट्रीम में ले जाते हैं ऑप्शन को, याद रखना ये हमेशा एलिमिनेट होते हैं। सो डाइट्स बेस्ड ऑन ग्रेन्स, नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आर बेस्ट सूटेड फॉर हेल्थ इन डेवलपिंग कंट्रीज। बिल्कुल ठीक लग रहा है ना? लेकिन अब आपको यहाँ पे रॉन्ग सेंस समझाता हूँ, दोबारा पढ़ना है, आप धीरे से पढ़ते हैं इसको। एज वी लुक टू 2050, अब आगे के जब हम देखते हैं, व्हेन वी विल नीड to feed 2 billion more people, ठीक है, the question of which diet is best has taken on new urgency. तो भाई खाना की डिमांड जब बढ़ेगी तो लोग, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाना भी ज़्यादा करना पड़ेगा, और इसीलिए बेस्ट डाइट कौन सी है ये सवाल उठने लगा है। द फूड्स वी चूज टू ईट इन द कमिंग डेकेड्स, जो हम आगे आने वाले डेकेड्स में खाना खाएंगे, विल हैव ड्रामेटिक रेमिफिकेशंस फॉर द प्लैनेट। उसका हमारी धरती पे, हमारे प्लैनेट पे बहुत ड्रामेटिक प्रभाव पड़ने वाला है। सिंपली पुट, अगर सिंपल बात रखें, सिंपल बात बोले तो क्या कह सकते हैं कि अ डाइट दैट रिवॉल्व्स अराउंड मीट and dairy, a way of eating that is on the rise throughout the developing world, कि डेवलपिंग कंट्रीज में जो ये नॉन वेजिटेरियन मीट और ये जो जिसकी डिमांड बढ़ रही है, विल टेक अ ग्रेटर टॉल ऑन वर्ल्ड्स रिसोर्सेज, कि उसका वर्ल्ड के दुनिया के रिसोर्सेज पे, जैसे पानी, मिट्टी, क्लाइमेट और वो सब, कार्बन एमिशन, इस पर बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है। सो इट सेज द डाइट दैट रिवॉल्व्स अराउंड मीट यू नो will take a greater toll, उसका ज़्यादा प्रभाव होगा on the world's resources than the diet that revolves around unrefined grains, nuts, fruits and vegetables. इसका प्रभाव कम होगा। तो ये कहना चाह रहे हो कि हमें अपनी डाइट को ध्यान से चूज करना पड़ेगा आगे आने वाले समय में। तो अब ऑप्शन ए और बी देखो गाइस। आर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फूड्स सोर्स्ड फ्रॉम एनिमल्स,
ठीक है, पुट्स अ ग्रेट बर्डन ऑन आर नेचुरल रिसोर्सेज, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन डाइट्स बेस्ड ऑन ग्रेन नट्स वेजिटेबल्स आर बेस्ट सूटेड फॉर हेल्थ इन डेवलपिंग कंट्रीज, सर ये भी तो ठीक है, लेकिन आप ये चीज़ भूल रहे हो, यहाँ पे उसने सिर्फ किसकी बात की है। अब देखो यहाँ एक ऐसी छोटी सी बात कह जाता है वो ऑप्शन में जहाँ से उसको एलिमिनेट किया जाता है। क्या कह रहा है कि भाई ये जो फ्रूट नट्स वेजिटेबल्स पे जो डाइट्स हैं वो बेस्ट सूटेड है किसके लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। क्यों, डेवलप्ड के लिए नहीं है, डेवलप्ड में खा लो जितना खाना है, डेवलपिंग में ही वेजिटेरियन खाना पड़ेगा, ये बात कहीं नहीं है। और यहीं से ये लॉजिक क्या हो जाता है, बीट हो जाता है कि डाइट्स जो इस बेस्ड है वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बेस्ट हैं। ये कोई मैसेज नहीं दिया उसने, उसने मैसेज क्या दिया है कि हमारी जो इंक्रीजिंग डिमांड है फूड की और जिससे हम नॉन वेजिटेरियन जो फूड हम खा रहे हैं, इट इज गोइंग टू पुट अ ग्रेट बर्डन ऑन आर नेचुरल रिसोर्सेज, इट पुट्स अ ग्रेट बर्डन। तो ये मैसेज कहना चाह रहे हैं कि नॉन वेजिटेरियन फूड खाने से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत प्रभाव पड़ता है। ये है क्रिटिकल मैसेज। तो द करेक्ट आंसर है इज ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से एलिमिनेट किया जाता है कि सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज की बात थोड़ी कर रहा है वो, उसने बोला है डेवलपिंग वर्ल्ड, लेकिन इसका मतलब इसने यहाँ क्या बोला था कि अ डाइट दैट रिवॉल्व्स अराउंड मीट एंड डायरी, अ वे ऑफ ईटिंग दैट इज ऑन द राइज के थ्रू आउट द डेवलपिंग वर्ल्ड, के डेवलपिंग वर्ल्ड में जो बहुत ज्यादा लोग अब शुरू कर रहे हैं, लेकिन डेवलप्ड वर्ल्ड की भी तो बात करनी चाहिए हमें, वहां पे भी तो खा रहे हैं लोग, उसका भी तो प्रभाव पड़ ही रहा है ना। सो इट विल टेक अ ग्रेटर टोल ऑन वर्ल्ड्स रिसोर्सेज देन दैट रिवॉल्व्स अराउंड दिस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपिंग कंट्रीज में ही बेस्ट सूटेड डाइट है जो वो वेजिटेरियन होनी चाहिए, डेवलप्ड कंट्रीज खा लो जो मर्जी खाना है, ऐसा नहीं है, वो हर पूरे प्लेनेट की बात कर रहा है। लेकिन जो असली मैसेज था, अब देखो हमें तो एलिमिनेट करना था, बट दिस वाज द रियल मैसेज कि इंक्रीजिंग demand for food as the population grows sourced from animals puts a great burden on our natural resources. So इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं पैसेज। The correct answer was ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब ऐसे हम और प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे सेशंस में गाइस। सो ये था इंट्रोडक्शन टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपको समझ आया कि क्या अप्रोच लेनी होती है और कितनी इजी होते हैं पैसेज ये, अगर आपको अप्रोच का सही पता है तो अब मैं आपको कुछ अच्छी बुक्स भी बताऊंगा इस सेशन में गाइस, जो आप फॉलो कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। अरिहंत की एक बुक आती है क्रैकिंग सीसैट पेपर 2, और एक अशोक कुमार सिंह की एक बुक आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट। बट एक प्रॉब्लम है गाइस, एक डिस्क्लेमर है गाइस, ये बुक अपडेटेड नहीं होती। जैसे आप देख रहे हो 2017 टू 2011 तो 2020 वर्जन भी आ गया होगा, उसमें बस क्या करते हैं पता है, सिर्फ पिछले साल का यूपीएससी का पेपर ऐड कर देते हैं और कुछ मॉडिफिकेशन नहीं होता। तो अगर आप देखोगे लेवल ऑफ पैसेजेस आज भी वही पुराने वाले ही दिए हुए हैं उसमें, जो आज के लेवल को मैच नहीं करते, राइट। तो अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि इसे यही मुझे तो बुक से ही करना है तो। लेकिन आज अगर आपको आज के टाइम का जो प्रॉपर मटेरियल है, जो प्रॉपर लेवल ऑफ पैसेजेस है, अगर आपको वो चाहिए तो आपको कुछ और सोर्सेज मैं बता सकता हूं जो आप खुद से और हमारे साथ भी प्रिपेयर कर सकते हो। पहले तो एक ये बुक ले आओ अगर आपको लग रहा है कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। ठीक है, दिस इज अल्टीमेट बुक फॉर वोकैबुलरी, थोड़ी बड़ी है लेकिन हो जाएगी, और एक बार हो गई इट विल हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ। यू हैव टू बी एन आईएएस ऑफिसर, वो भी याद रखो। तो वहाँ पे जब आप जॉब करोगे तो इंग्लिश की जरूरत पड़ने वाली है आपको, तो दिस इज गोइंग टू बी अ गुड सोर्स। रिविजन और आपकी जो एक पढ़ने की हैबिट है वो कहाँ से होनी चाहिए, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, ऑनलाइन आर्टिकल्स जैसे पीबीएस है, लाइव मिंट है या द हिंदू है, दीज आर गुड सोर्सेज टू रीड एडिटोरियल्स, कॉलम्स, एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स। ठीक है, तो ये डेली हैबिट बनाओ एक रीडिंग की, ताकि आप एक रेगुलर कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी जो है आपकी हैबिट उसकी बनी रहे और चलती रहे। देन प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से करने चाहिए, आई ऑलवेज फील पहले सबसे पहले पीवाईक्यूज करो, वो जब तक खत्म नहीं होंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन करने का या इधर उधर कुछ करने का कोई लॉजिक नहीं बनता जब तक आपको सही अप्रोच नहीं पता होगी कि किस तरह के पैसेजेस और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो आई ऑलवेज सजेस्ट पीवाईक्यूज से प्रैक्टिस करो, दैट विल गिव यू द बेस्ट वे और द बेस्ट इनसाइट। एंड इफ यू नीड के सब कॉन्सेप्ट्स कहाँ से बिल्डअप करें या कहाँ से पढ़ें इन सब चीज़ों को, तो हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है आपको एडुटैप पे जो मिला है, इसमें आपको सारी गाइडेंस, सारी पीडीएफ्स, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज, लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड सेशन, सब कुछ इसके अंदर प्रोवाइडेड है, और उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, सो यू कैन गो एंड चेक आउट दैट, राइट। सो गाइज वी विल कंटिन्यू दीज सेशंस फॉर यू एवरी डे, और हर रोज आपके पास हम ये सेशंस लेके आएंगे और आपको हेल्प करेंगे इसी तरह से, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो यूपीएससी सीसैट के लिए ना। बच्चे ये भी पूछते हैं सर वो आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता सकते हो जो हमें पढ़ने चाहिए ताकि हम सीसैट की तैयारी कर पाएँ साथ साथ। तो जो आप न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स पढ़ते हो उनमें से भी मैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स लाया हूँ जिनके बेसिस पे आपको ये पैसेजेस मिलते हैं, और ये अगर आप टारगेट करते हो तो दैट विल सर्व द राइट और द बेस्ट पर्पज। तो पहला, कोई भी इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं आपके डिस्कस होते हैं, ठीक है, जैसे इन्फ्लेशन है, रेपो रेट है, ग्रोथ रेट है, एफडीआई है, ये इंपॉर्टेंट
टॉपिक्स हैं, सोशल इश्यूज हैं, विमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड एम्पावरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल राइट्स, ये सब आते हैं इसमें, ऐसे टॉपिक्स पैसेजेस आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं, कोई नई चीज़, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, इंटरनेट आया है, जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आई हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, इनके ऊपर पैसेजेस आ जाते हैं। रूरल इश्यूज़ पे आ जाते हैं, सैनिटेशन के ऊपर, हेल्थ हाइजीन के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर आता रहता है, आयुष्मान योजना, कोविड-19, क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट बहुत कॉमनली आते हैं, इकोसिस्टम, क्लाइमेट चेंज, ये अपना जी क्या बोलते हैं, ये COP27, COP26, ग्लोबल वार्मिंग, इन पे आते रहते हैं। और कोई भी करंट बर्निंग इशू है जो कि पॉलिटिकल ना हो, पॉलिटिकल नहीं आते इसमें पैसेजेस, कोई रॉकेट साइंस नहीं आती, बट करंट इशू जैसे ई रूपी लॉन्च हो गया, या ONDC आ रहा है, ऑनलाइन मार्केटिंग हो गई है, ई शॉपिंग चल रही है, तो इन टॉपिक्स पे आपके पैसेजेस बनते हैं। तो अगर आप ये पैसेजेस टारगेट करते हो तो दे विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर जर्नी अहेड। ठीक है, सो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस, दैट वाज द फर्स्ट सेशन, दैट वाज इंट्रोडक्शन टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड वी विल कंटिन्यू these sessions on a daily basis for you. So every day 12:30 you will find a new session for you on this channel. So don't forget to subscribe our channel, don't forget to join our Telegram group if you want the PDFs of these sessions for free, and the link for our Telegram channel has also been given in the description of the video. So guys, if you wish to contact us for anything, you can call us on this number during the office hours, 8146207241. If you want to check out our courses, you can visit our website www.edutab.co.in, and if you have any other query, you can drop us an email at hello@edutab.co.in. So thank you so much once again for your precious time guys. Keep on working hard, keep on giving your best, and I hope and I wish you all the success in your endeavors ahead. So stay safe, stay healthy, and happy learning to all of you.